Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So welcome back once again and let us get started. So what have we been doing till now? Introduction of ये subject हो चुका है, ये subject का इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब्जेक्ट किसके लिए काम आता है, यूटिलिटी क्या है, थोड़ा थोड़ा करके हमने कवर अप कर लिया है. एंड देन वी शिफ्टेड आवर अटेंशन टू द टर्मिनोलॉजी. ओके, वेरी क्विकली, व्हाट डू आई मीन बाय टर्मिनोलॉजी? वेल, सिंपल वर्ड्स. क्योंकि जैसे आप, अगर आपका कोई दोस्त साइंस कर रहा है, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सो ऑब्वियसली इफ़ यू एवर ओपन अप हिज physics, chemistry, maths, biology textbook, okay, you will see that the wordings, जो शब्द होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं. because obviously physics पढ़ना है तो उसकी दुनिया आपको समझनी पड़ेगी, biology पढ़ना है उसकी दुनिया आपको समझनी पड़ेगी. okay, similarly for chemistry, all the chemical names etc etc. similarly अगर आपको accountancy पढ़ना है, because in a particular definition accounts is called as a science, which actually many of you would be, अरे सर साइंस कैसे है? डोंट वरी, उस मुद्दे पे हम लोग आएंगे, बट लेटर ऑन आप ये नोटिस करोगे साइंस जैसे फैक्ट, फिगर्स, रूल्स पे बेस्ड है, अकाउंट्स भी फैक्ट, फिगर्स, रूल्स पे बेस्ड है. टुडे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ फ्यू एक्सप्लेनेशंस ऑफ वर्डिंग्स जो अकाउंटेंसी के दुनिया में अपकमिंग क्वेश्चंस में, एंड नॉट जस्ट क्वेश्चंस, अपकमिंग सालों में, ओके, आपके पूरे कॉलेज लाइफ में काम आएंगे. ओके, वेरी क्विकली टू टेल यू कि लास्ट टाइम तक हमने क्या किया. वेल, लास्ट टाइम हमने ट्रांजैक्शंस की शुरुआत की. आई टॉट यू के मॉनिटरी ट्रांजैक्शन क्या होता है, थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ मैं, और नॉन मॉनिटरी क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रांजैक्शन? मैं सर दुकान में गया, मैंने कुछ ख़रीदा और बदली में मैंने उसको पैसे दिए, तो वो बन गया मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. ओके, मैंने बोला दुकानदार को मैं 10 दिन बाद पैसे देता हूँ, तो वो बन गया क्रेडिट ट्रांजैक्शन. बट गांव में, ओके, ज़्यादातर गांव में, ओके, रूरल पार्ट ऑफ इंडिया, ओके, या पुराने ज़माने में जब पैसा नहीं था तो लेन देन कैसे होता था? हाउ डिड द ट्रांजैक्शन, द गिव एंड टेक वर्कआउट, कि तू मुझे एक प्रोडक्ट दे, बदली में मैं तुझे एक प्रोडक्ट दूंगा. व्हेन आई से गांव में किसी की खेती बाड़ी फल की है, किसी की खेती बाड़ी
सब्जी की है तो तू मुझे एक तरीके का फल दे, फ्रूट, इन रिटर्न में तुझे कुछ वेजिटेबल दूंगा। मैं कुछ पल्सेस उगाता हूँ, तो मुझे उसके जगह पे चिल्ली देना, कांदा देना, बटाटा देना। सो दैट वाज एन एक्सचेंज, मनी इन्वॉल्व नहीं था। दैट वाज कॉल्ड एज अ बार्टर ट्रांजैक्शन। ओके, होल्ड ऑन, दिस इज नॉट न्यू, ये तो पुरानी कहानी है। आई एम जस्ट रिपीटिंग दिस वेरी क्विकली ताकि आप मेरी दुनिया में आ जाओ। सो नेक्स्ट वाज गुड्स। गुड्स क्या था? दुकानदार जो बेचने के लिए राजी है, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको गुड्स कहते हैं। सो व्हेन यू गो टू अ फर्नीचर का दुकान, व्हाट इज द दुकानदार, द ओनर ऑफ द शॉप विलिंग टू सेल? डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, कबर्ड, ओके, कैबिनेट्स, ऑल ऑफ दैट, ओके, अ मेकअप टेबल, फाइन, क्योंकि वो फर्नीचर है। बट व्हेन यू गो टू एन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, ओके, तो व्हाट इज द दुकानदार विलिंग टू सेल? टीवी, रेफ्रिजरेटर, ओके, कंप्यूटर्स, लैपटॉप, ओके, मोबाइल्स इफ इट्स अवेलेबल, फाइन। तो क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो जाता है। बट अगर मैं एक भाजी वाले के पास जाऊं तो उसके पास जो वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स होते हैं वो गुड्स हो जाते हैं। अगर मैं एक फ्रूट वाले के पास जाऊं, अगर मैं एक कपड़े वाले के पास जाऊं, ओके, द वन हु सेलिंग डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्लॉथ्स, जिससे आप कुछ ना कुछ स्टिच कर सकते हो। गुड्स डिपेंड्स अपॉन कि वो बिजनेसमैन किस चीज़ का डील कर रहा है, उसको हम गुड्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने क्या सीखा? कैपिटल एंड ड्राइंग। कैपिटल का मतलब ये दोनों कनेक्टेड है ओनर ऑफ द बिजनेस से। सो देर इज अ शॉप विच इज बिहाइंड मी, विच इज अबाउट मी, सो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। हाँ, एक दुकान होता है, एक दुकानदार होता है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट, सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट डिफरेंट। जब दुकानदार दुकान को कुछ देता है, बिकॉज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम, दुकानदार इज लाइक मम्मी पापा। मम्मी पापा तो तुमसे प्यार करते हैं ना, हमारे भी मम्मी पापा हमसे प्यार करते हैं। सो इवन दो एट दिस पर्टिकुलर एज ऑफ माइन विच इज 40 years, okay, so my mom and dad still worry, they still ask me, खाना खाया, ये किया, वो किया, they still ask me. So the mummy papas are always worried about their children and they do their best कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ करे अपने बच्चों के लिए। हाँ, तो similarly when the owner gives something to the shop, that is called as capital. In accountancy the word that is used, उसको capital कहते हैं। ओनर पैसा दे सकता है, ओनर गुड्स दे सकता है, येस और नो? योर मॉम एंड डैड कैन गिव यू मनी, पॉकेट मनी, योर मॉम एंड डैड कैन कुक एंड गिव यू समथिंग टू ईट, तो वो गुड्स हो जाएगा। योर मॉम एंड डैड मे गिफ्ट यू, मतलब लेट्स जस्ट से यू आर बिग इनफ टू टेक केयर ऑफ अ व्हीकल, तो आपको टू व्हीलर गिफ्ट कर दिया, अगर उनके पास उतना पैसा है, या दे थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू गिव यू। सो मॉम एंड डैड, पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को बहुत चीज़ें देते हैं। तो जब वो बिजनेस में हम बात करते हैं, ओनर ने जो भी दिया बिजनेस को, उसको कहते हैं कैपिटल। और उल्टा, ओनर ने जो भी लिया बिजनेस से, कभी कभी होता है माँ बाप को लगता है कि बाबा नहीं, हमारे पास छुट्टे नहीं है तो कुछ छुट्टा दे दे हमको, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैन यू हेल्प आउट, वो बच्चों से थोड़ी मदद मांग लेते हैं। सो व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम द शॉप, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स। दीज वर्ड्स, कैपिटल, ड्राइंग, all of this is going to be useful in upcoming the entire year of 11th standard as well as your entire life of accountancy. And when I say entire life, I don't mean a few years, multiple years. Moving on, next हमने क्या सीखा? Debtor and creditor. Okay, now because we will be dealing with these words in a lot more detail later on, I am just introducing it for you. Debtor का मतलब क्या? एक ऐसा इंसान, a person from whom we have to take money. ऐसा कौन होता है? नॉर्मली अ कस्टमर। नॉर्मली तुम्हारा दुकान है, यू सेल अ प्रोडक्ट ना, दैट इज टू अ कस्टमर, तो कस्टमर से तो पैसा लेना है। तो इन अकाउंटिंग भाषा दैट कस्टमर इज कॉल्ड एज डेटर। वेरी सिंपल, ओके। बाकी आई डिड एक्सप्लेन इट इन अ लिटिल मोर डिटेल लास्ट टाइम, यू कैन ऑलवेज वॉच दैट लेक्चर, ओके। क्रेडिटर कौन होता है? ये सप्लायर है, बराबर। इफ यू गो टू अ होटल एंड यू ऑर्डर अ पर्टिकुलर डिश, ओके, उसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं
क्या आपको लगता है वो होटल वाले के पास होटल के पीछे खेती बाड़ी है? नॉर्मली नहीं, नॉर्मली नहीं। उसके पास भी टमाटर, कांदा, मसाला सब डिलीवर होता है। कौन करता है? सप्लायर। सप्लायर, कीप दैट इन माइंड, बराबर। तो सप्लायर कौन है? तो एवरी शॉप हैज अ सप्लायर, उसको कहते हैं क्रेडिटर, बिकॉज शॉपकीपर को उसको पैसे देने हैं, पेएबल। सो डेटर इज रिसीवेबल, पैसा आना है, एंड क्रेडिटर इज पेएबल, वी हैव टू पे। वो वर्ड जो है ना इसके पहले, if I did not clarify it for you, let me do that once again for you. Debtor में the word is DEBT, debt. Debt मतलब कर्जे में, that's the English language. हिंदी में उसका रूपांतर करूँ तो कर्जे में। कस्टमर हमारे कर्जे में होता है, वेरी राइट ना, अगर उसको पैसे देने तो वो हमारे कर्जे में है। हर बैंक जिसको बैंक लोन देता है ऐसा ही बोलेगा ना, इसने लोन लिया, उसने लोन लिया, उसने लोन, ये सब लोग हमारे कर्जे में है, वेरी ट्रू, ओके। हाँ, बट क्रेडिटर का मतलब क्या है? जिसने हमें कर्जा दिया, या जिसने, क्रेडिट का मतलब टाइम होता है, ऐसे समझो, थिंक अबाउट इट लाइक दिस। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? टाइम, ओके। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रेडिट कार्ड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ओके। वो भी टाइम पे ही बेस्ड है, ओके। बट राइट नाउ अंडरस्टैंड, क्रेडिटर मीन्स व्हाट? टाइम। तो क्रेडिटर ने हमको टाइम दिया, 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ, बाद में हमको पैसा क्लियर करना है, ओके। वेरी क्विकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गो थ्रू थिंग्स। देन ये बादशाह कौन है हमारे पीछे? दीज आर द पीपल हु आर कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बैड डेप्ट। डेप्टर में से ही निकलता है, फ्रॉम दैट वर्ड डेटर यू गेट द वर्ड बैड डेप्ट, ओके। द वर्ड डेप्ट मीन्स व्हाट? मेरे को पैसा लेना है, अगर वो पैसा मिल गया तो गुड डेप्ट, अच्छी बात है। बट अगर वो पैसा नहीं मिला तो अच्छी बात तो नहीं है ना, तो बैड डेप्ट है। सो इट हैपन्स, एक नहीं अनेकों बार, दैट बिग बिग ऑर्गेनाइजेशंस, बिग बिग बैंक्स, बड़े बड़े बैंक, ओके, नामचीन बैंक, सदियों पुराने बैंक, बहुत बिजनेसमैन को, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा देते हैं लोन के रूप में, और फॉर सम रीज़न वो लोन कभी वापस आता ही नहीं है, तो वो बैड डेप्ट हो जाता है, ओके। वेरी सिंपल, इट्स अ लॉस। अगर आपका दुकान है, आपके पास कस्टमर है, यू विल हैव मेनी कस्टमर्स, 50, 60, 100, 2000, 3000, ओके। नॉट एवरी कस्टमर इज गोइंग टू बी अ गुड कस्टमर, देयर कैन बी अ बैड कस्टमर। तो पैसे तो नहीं मिलेंगे ना उससे, तो वो हो जाएगा बैड डेप्ट। अगेन डिटेल में डन last time, okay. Moving on, what else did we understand? Types of expenditure. Now what do I mean by that? Expenditure मतलब खर्चा, okay. Very important that you have to understand कि what does खर्चा आप क्यों करते हो? What does खर्चा mean? So मैंने मेरी जेब से 100 रुपीज़ लिया, 500 रुपीज़ लिया, 2000 रुपीज़ लिया और मैंने पे किया, खर्चा हो गया। क्यों पे किया तूने? क्योंकि you get a benefit, वेरी इंपॉर्टेंट, यू गेट अ बेनिफिट, फायदा मिलता है ना आपको। तो वो फायदा कितने टाइम के लिए आपको मिलता है? क्या वो फायदा आपको लंबे टाइम तक मिलता है? व्हाट इज लंबा टाइम? 10 साल, 20 साल, 30 साल, ओके। यू मे वंडर, आप सोचोगे सर ऐसा कौन सा चीज़ है जिसपे खर्चा की और 30 साल हमको बेनिफिट मिला? अरे जो राजा महाराजा थे लॉन्ग टाइम बैक, लॉन्ग टाइम बैक, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए। क्या वो महल टूट गए? नॉट ऑल ऑफ देम। हाँ, कभी में भी जंग में किसी पे गोली बारूद ऐसा कुछ हो गया रहेगा, बट मैनी ऑफ दीज महल्स, पैलेसेस, दे आर इंटैक्ट। मैनी ऑफ द फोर्ट्स दे हैव कंस्ट्रक्टेड, ओके, जो किले उन्होंने बनाए, ओके, वो सब इंटैक्ट है, वो टूटे नहीं। मतलब उनका कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत था। कितने पैलेसेस तो आजकल होटल्स में कन्वर्ट किए गए, तो बनाए उन्होंने सदियों साल पहले। अभी जिसने उसको खरीदा है उसको फायदा हो रहा है। हाँ, तो क्यों नहीं होता है यार, सालों साल मतलब होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ऊपर जो है ना, उसका मतलब क्या है कि जब मैंने खर्चा किया और मुझे फायदा 30, 40, 50 साल तक हो रहा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? मैंने खर्चा किया और मुझे फायदा
कम समय तक हो रहा है, दैट समय का मतलब होता है 1 साल अकाउंट्स के अंदर। ये मैं आज के लेक्चर में थोड़ा और ज़्यादा चर्चा करूँगा, ओके, कि टाइम हमेशा, ओके, क्योंकि अगर आपको पता होना है मैं टाइम के पहले आया, मैं टाइम के बाद आया, ओके, आपको टाइम पता होना चाहिए। हाँ, सो इन अकाउंट्स टाइम इज ऑलवेज 1 ईयर। सो 1 ईयर से कम होगा आपका फायदा, देन वो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो आई रिपीट, इफ यू ट्रैवल इन अ बस, आप किसी बस में बैठे और मे बी 15 मिनट के बाद आप उतर गए, तो कंडक्टर को आपने कुछ ना कुछ तो पे किया। डिड दैट गिव यू अ बेनिफिट? यस, बिकॉज यू वर सिटिंग इन द बस, आपको वो एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक लेके गया, बट वो 1 साल से तो ज़्यादा नहीं है ना। नेक्स्ट टाइम जब चढ़ोगे यू कैन टेल द कंडक्टर, अरे आपको याद है मैंने लास्ट टाइम पैसे दिया था, बोलेगा सर वो लास्ट टाइम का था, आज आपको फिर से टिकट लेना है। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर लोग एक ही बार करते हैं नॉर्मली, ओके, मैंने एग्जाम्पल दिया नहीं तो वापस रिपीट करता हूँ मैं। गाड़ी खरीदोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ही बार खरीदना है, बट उसमें अगर आप पेट्रोल डालोगे या अगर वो इलेक्ट्रिक है तो उसको आप चार्ज करोगे, तो चार्ज तो आपको अगेन एंड अगेन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो चार्ज का तो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, हाँ, वो रेवेन्यू बन जाता है, बराबर। सो आपके लिए मोबाइल खरीदा कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट उसको जो आप चार्जिंग करते हो, ओके, अगेन एंड अगेन, उसका जब बैटरी कम होता है तो चार्ज करते हो, तो वो बन जाता है रेवेन्यू। हाँ, एक तीसरा है टेक्स्ट बुक में आपका, उसका नाम है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। व्हाट डू यू मीन बाय डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? वो 1 साल से ज़्यादा बट 3-4 साल से कम, ऐसे उसका बेनिफिट होता है। फाइन। अब एग्जाम्पल, अगर एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर वर्कर्स है, तो वर्कर्स को उसके अंदर मशीन्स है, मशीन्स का जो पेंटिंग होता है ना, वो हर 6 महीने में किया जाता है, बिकॉज इट हैज़ टू बी मेंटेन्ड, उसमें रस्ट नहीं आना चाहिए। 6 महीना हुआ पेंट करो, 6 महीना हुआ पेंट करो, तो ये तो रेवेन्यू हो गया इस तरह का पेंटिंग। बट जो पूरा फैक्ट्री है उसके दीवार का वाइट वॉश होता है, वाइट पेंट किया जाता है, वाइट, वो 6-6 महीने में नहीं करते, वो 3-3 साल में करते, 3-3 साल, ऐसे फैक्ट्री वाले ने सोच के रखा है। तो जब वो 1 साल करता है तो 2-3 साल तक फायदा मिलता है, फिर से पेंटिंग करता है 1-2-3 साल तक, तो दैट इज समवेयर बिटवीन 30 साल नहीं, 30 ईयर्स नहीं, 3 साल, तो उसको कहते हैं डिफर्ड रेवेन्यू। यू डोंट हैव टू कॉन्सेंट्रेट अ लॉट ऑन डिफर्ड रेवेन्यू, कैपिटल पे और रेवेन्यू पे ज़्यादा ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन उस पे ज़्यादा आते हैं। देन नथिंग, दिस वॉज जस्ट टू क्यूट फॉर मी not to repeat, okay, so I was basically, मैंने ये last time explain किया with the help of these images कि capital और revenue में difference क्या है। okay, so guys, what have I till now explained? The lecture is around 20 minutes, but I have just tried to repeat what I did last time. It's not a waste of time, absolutely not, because these terms, ये जो wordings है, शब्दकोश, okay, जो wordings है आपको आने वाले पूरे साल में काम आने वाले हैं। So till last time transaction, goods, capital and drawings, debtor, creditor type of expenditure हो गया। Today 2 ही चीज़ में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, टाइम जाएगा उसमें, बट 2 ही, एक का नाम है अकाउंटिंग ईयर और उसके बाद है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नाउ बोलने के लिए इट इज़ ओनली 2, हाँ सर बस आप 2 ही इंट्रोड्यूस करोगे तो वो तो 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं, नॉर्मली मेरी एक थोड़ी बुरी आदत है कि जब मैं थोड़ी जानकारी देना स्टार्ट करता हूँ ना, ओके, मतलब स्टूडेंट ने पूछा सर मेरे को इत्तू सा इन्फॉर्मेशन दो, मैं वो इत्तू सा को इतना लंबा कर देता हूँ। आई नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, बट क्या करें कि टीचर हूँ, ओके, करीबन 20 साल हो चुके हैं पढ़ा के, आदत से मजबूर हूँ, ओके, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि भाई जो रिक्वायर्ड नहीं है वो आपको सुनाता नहीं हो। ओके, नाउ व्हाट डज द इमेजेस बिहाइंड मी ट्राई टू डिपिक्ट? अ रिलेशनशिप, एक रिश्ता, a very रिश्ता filled with a lot of love, care. Hold on, okay, ये कोई रिलेशनशिप पे बेस्ड लेक्चर नहीं है, डोंट वरी, अकाउंट्स पे ही, बट मैं अकाउंट्स पे आऊँगा। व्हाट इज द डिफरेंस उस तरफ के इनके रिश्ते में और ये जो ऊपर नीचे? बाय द वे, दिस इज द प्रेजेंट क्वीन ऑफ इंग्लैंड and has been for a long time, and her husband, okay, as simple as that, okay, and इनका रिश्ता I would say boyfriend girlfriend, okay,
कितना टाइम चलेगा, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना टाइम चलेगा डिपेंड करता है यार, नॉर्मली सदियों का तो होता नहीं है नॉर्मली, ओके, क्योंकि वो इतना it's not a very committed relationship normally, boyfriend girlfriend, okay, I'm not saying don't get angry or no sir it's not, boyfriend girlfriend is also committed, हाँ मैं generally बोल रहा हूँ, okay, just a generally, हाँ that means maybe some months फिर change, season change, partner change, okay, होना नहीं चाहिए, but that depends upon, it's a personal choice. I'm just talking about the length of the relationship. But when it comes to a couple that is married obviously usme there can be a lot more examples given, okay, but I just could get the images of these two people because when they were young they looked quite pretty, okay, till the end they look quite happy, okay. Now it's a different thing, one of them is not alive any longer, but still just trying to tell you okay, the relationship on that side of the screen will not last long. The relationship on this side of the screen has definitely lasted the test of time, many years. मतलब शादी करना is a different concept, different बात, शादीशुदा रहना is a different बात. You may say sir what does this mean? Don't worry, you're just 16-17 years old. अभी हम लोग शादी पे इतनी चर्चा नहीं करते हैं और शादीशुदा रहने पे इतनी चिंता करते हैं. I'm just trying to say, okay, it's a difficult task. It's a difficult task. Okay, but if you achieve it, hey, आपको मेडल मिलना चाहिए. So moving on, left side of the screen, कम time. Right side of the screen, a lot time. अब ये time की बात क्यों हो रही है? Because मैं time पे आ रहा हूँ. In accountancy, whenever you talk about time, you will always talk about accounting year. Year, not this year. Year means 12 months. जो कैलेंडर पे आपको 12 महीने दिखते हैं ना, उसका मतलब होता है year. In accounts, whenever you say, मैं बोलता हूँ accounts का मतलब क्या है? Record. Write. What am I supposed to write? You're supposed to write what is happening. दुकान में if you sit for one day in a hotel, at the counter of the hotel, many things will happen ना. Customer will come, customer will go, supplier will come, supplier will go, money will come, money will go. अरे कितना चीज़ होएगा, ओके, ये बिल आएगा, वो बिल आएगा, तो तुमको सब रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा. That's accounts. But how long? Okay, you're supposed to write accounts for 12 months. Hold on. उसके बाद क्या? 12 महीने बाद क्या? 12 मतलब 1 साल, ओके. उसके बाद फिर से नया अकाउंट्स, मतलब मैं एक बुक यूज करूंगा 1 साल के लिए, अकाउंटिंग ईयर, और फिर जब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर आएगा मैं नया बुक स्टार्ट करूंगा. जस्ट लाइक योर एकेडमिक ईयर, ओके, इफ यू आर इन 5th स्टैंडर्ड तो यू यूज वन नोटबुक फॉर 5th स्टैंडर्ड, बट व्हेन यू गो टू 6th स्टैंडर्ड यू चेंज द नोटबुक ना. इट मेक्स सेंस. हाँ, तो अकाउंटिंग ईयर कब शुरू होता है, कब खत्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट. कीप दिस इन माइंड. Not just again whenever whatever I'm teaching ना, terminologies, wordings, वो आज के लेक्चर के लिए नहीं है, वो आपके आने वाले पूरे कॉमर्स की लाइफ के लिए है, तो उतना लाइक याद रखना. ओके, अकाउंटिंग ईयर नॉर्मली स्टार्ट्स फ्रॉम अप्रैल एंड कम्स टू एन एंड इन मार्च. मतलब ये जो साल अपना है अभी प्रेजेंट टेंस में, अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है? April 1. सो आई होप यू कैन सी दैट. And when will it end? इस तरफ है ना, 31st March. Because if you count in between, मतलब 12 महीना आना चाहिए. तो डेफिनेटली 12 महीना आता है. कैसे? मैं बीच की स्टोरी आपको दिखा देता हूँ कि आफ्टर अप्रैल मार्च तक आते आते यू विल गो थ्रू, आपकी गाड़ी जाएगी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, January, February, and then you will land up in March. So I repeat, nothing complicated, very simple. 1st April को start होता है और 12 महीने बाद 31st March को accounting year खत्म होता है. Okay? हाँ, when you have been following 1st January and then it comes to an end on 31st December, वो एक कैलेंडर ईयर है. ओके, हमारे घर में जो कैलेंडर लगते थे, ओके, वो स्टार्ट होते थे जनवरी से और ख़त्म होते थे 31st December. दैट्स ऑल्सो अ ईयर, बट दैट्स नॉट टेक्निकली एन अकाउंटिंग ईयर. एन अकाउंटिंग ईयर के लिए याद रखना, ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज अ
financial year. Okay, because whether if it is a bank और अ कंपनी और अ इंश्योरेंस कंपनी, ओके, सब लोगों को यही फॉलो करना पड़ता है क्योंकि इसको इनकम टैक्स कनेक्टेड ईयर भी कहते हैं. ओके, एंड इनकम टैक्स तो इन इंडिया एवरीबडी हैज़ टू पे. सो एवरीबडी हैज़ टू फॉलो दिस स्टाइल. स्टार्ट ऑन 1st April, end on 31st March. 12 months. It will be April 2021, but it will come to an end March 2022. 12 महीने का gap is called as an accounting year. Normally in accounts, at least in India and actually in other parts also, we follow 1st April to 31st March. Very simple. Please don't by heart anything. So वो बड़ा डेफिनेशन ऊपर बाय हार्ट करना है नहीं, वो जो टेक्स्ट बुक में दिया मैंने वही रिपीट किया है, बाकी मैंने मेरा एक्सप्लेनेशन इसके अंदर आपको जोड़ लिया. आप समझो, बाय हार्ट मत करो प्लीज, जरूरत नहीं है. ओके, दैट्स प्रीटी मच द फर्स्ट थिंग दैट आई हैड टू डू. दो ही चीज मुझे करना था, एक अकाउंटिंग ईयर and the other asset liability. Now even though I start with telling you सर अच्छा जल्दी खत्म हो जाएगा, नहीं, इसके अंदर बहुत फैमिली ट्री होती है ना. कुछ लोगों के घर में ना फैमिली ट्री करके एक फोटो फ्रेम लगता है, मम्मी पापा, ब्रदर सिस्टर एंड मे बी ब्रदर, एंड देन उसके नीचे उनके बच्चे, लंबा पारिवारिक झाड़ होता है फैमिली ट्री. तो ये एसेट एंड लाइबिलिटी का जो फैमिली ट्री है ना, ये काफ़ी लंबा है. We'll concentrate on the word assets and obviously वो ख़त्म करने के बाद में we will go to liabilities. Asset का मतलब क्या होता है? Let me थोड़ा मैं मेरे इसके अंदर आगे जाता हूँ और आपको समझाता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ कि दो हिंदी में वर्डिंग्स याद रखने. जिनको हिंदी पता है obviously ना you will be a lot more comfortable. कि asset के साथ क्या वर्ड में यूज़ कर सकता हूँ? मेरा. So many times na, my son who is 9 years old, okay, he plays with this Rubik's cube. Now he didn't purchase it, okay, obviously being mama papa we purchased and gave it to him, but he says because I have a daughter and so he always tells because my daughter is 6 years old and वो थोड़ा मिस्चिफ करती है, तो शी ऑलवेज सेज, मेरा बेटा मेरी बेटी को बोलता है मेरा है, डोंट टच, यू डोंट टच, मेरा है. हाँ, तो वेल वेदर यू आर अ 9 year old और वेदर यू आर अ 90 year old, ओके, अगर आपने कुछ आपको किसी चीज़ के ऊपर हक जताना है, राइट, दिस इज माइन, यू विल कॉल दैट एज वॉट, मेरा, इफ यू नो द हिंदी लैंग्वेज. हाँ, लेटर ऑन जब मैं आऊँ लाइबिलिटी पे तो हम लोग बड़े आदर से कहेंगे आपका, वो हम लोग आ जाएंगे. बट राइट नाउ रिमेंबर, वेन एवर इफ एनीबडी, ये लेक्चर के बाद आपके मम्मी पापा आपको पूछे क्या पढ़ाया स्टीवन सर ने आपको, आप बड़े शौक से, बड़े गर्व से बोलो एसेट का मतलब मेरा. ओके, नाउ ये जो मेरा कॉन्सेप्ट है, क्या मेरा है? व्हेन यू रन अ शॉप, ओके, बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. हम लोग दुकान की बात कर रहे हैं, दुकान के रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं. दुकानदार काफी बार कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है. सो व्हाट इज द शॉपकीपर ट्राइंग टू से? अरे उसका प्रॉपर्टी है, तुम लोग उठा के तुम जाके होटल में बैठा, तुमने कुछ ऑर्डर किया, लेट्स से मेंदू वड़ा ऑर्डर किया, वेरी सिंपल, ओके, वेरी नाइस डिश, अच्छा से हजम हो जाता है, नो तकलीफ, ओके, मेंदू वड़ा ऑर्डर किया, मे बी 60 रुपीज़ 50 रुपीज़, थोड़ा महंगा होटल रहेगा तो 80-100 रुपीज़, समथिंग लाइक दैट, ओके. अभी तुम जाके एक टेबल पे बैठा, ओके, एंड व्हेन यू गो, जस्ट बिकॉज यू पेड 80-100 रुपीज़, कैन यू टेक दैट टेबल एंड गो होम? नो, दुकानदार बोलेगा, जो काउंटर पे बैठा है, द मैनेजर ऑफ द शॉप, मे बी द ओनर ऑफ द शॉप, अरे सर क्या कर रहे हो, वो मेरा है, वो उठा के, तो यू कांट से, अरे हमने दिया ना 80 रुपीज़ सर तुमने खाने के लिए दिया, वो हमने तुमको दिया ना, तुमने खा लिया, अभी का तुम ये टेबल कुर्सी लेके जा रहा है. द फर्नीचर इन द शॉप इज ऑफ द शॉपकीपर. तुमको एसी का ज़्यादा कुछ कूलिंग पसंद आ गया तो यू कैन जस्ट पिक इट अप एंड गो. तुम वो जो कटलरी है ना, काटा छुरी, ओके, जो प्लेट है, वो तुम उठा के नहीं लेके जा सकते हो. सो आई रिपीट माई सेल्फ. सो एसेट का मतलब क्या है? हर दुकानदार के पास एसेट होता है, नॉट जस्ट दुकानदार. You as a student who's watching me on Steven Sir Makes It Easy channel, okay, is it do you have assets? Everybody has assets, okay. So if you are somebody like me,
जो चश्मा पहनता है, तो आप बोलोगे सर ये मेरा एसेट है। अगर आपके पास एक मोबाइल फोन है तो वो आपका एसेट है, बिकॉज यू विल कॉल दिस व्हाट, मेरा मेरा मेरा। ओके, आपकी जेब में अगर बटवा है, बटवे में पैसा है, तो आप बोलोगे ये पैसा मेरा है। ओके, मेरा 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 मतलब एसेट एसेट एसेट। नाउ एसेट 3 वैरायटी का है तो एक्चुअली बहुत वैरायटी का, बट आज के लिए हम लोग 3 ही वैरायटी पढ़ते हैं। फर्स्ट, फिक्स्ड एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड एसेट? ओके, एग्जाम्पल बिफोर आई गिव यू the more serious explanation. If you have a cycle, 5 गियर, 7 गियर, 10 गियर, समथिंग लाइक दैट, गियर वाली साइकिल। ओके, सो वो साइकिल जो है वो आपके साथ 2 साल, 3 साल, 4 साल। ओके, अकाउंट्स में टाइम का मतलब क्या है? 1 साल। ऑलवेज रिमेंबर 1 ईयर। हाँ, तो जो साइकिल है आपकी वो आपके साथ में 3-4 साल से है। आप ट्यूशन को उसके ऊपर 3-4 साल से कोचिंग क्लास को जाते हो। सो दैट साइकिल इज अ फिक्स्ड एसेट। वेरी इंपॉर्टेंट, एन एसेट विच इज विथ यू, आपके पास है, आपका है फॉर मेनी मेनी ईयर्स, फिक्स्ड एसेट। बट अगर आपके पास पंप नहीं है, एयर पंप, मे बी यू गो टू अ साइकिल वाला, ओके, 1-2 रुपया देकर आप उसमें हवा भरते हो। एवरी वीक यू गो, एवरी टाइम यू पुट हवा हवा हवा। तो आई रिपीट माई सेल्फ, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा करंट एसेट। 2 टाइप के एसेट है। जो साइकिल है आपके साथ काफी सालों से है, तो उसका फायदा आपको काफी सालों से हो रहा है। और जो हवा आप डाल रहे हो ना, उसका फायदा आपको थोड़े टाइम के लिए होता है, 1 हफ्ते के लिए होता है, मे बी उससे कम के लिए हो सकता है, बट दैट इज अगेन एंड दैट कीप्स ऑन चेंजिंग अगेन एंड अगेन। राइट नाउ इधर आ जाते हैं। तो फिक्स्ड एसेट में क्या आएगा? बिल्डिंग। ओके, जो टेक्स्ट बुक में है, एक्चुअली आई हैव जस्ट ट्राइड टू पुट अ चित्र, अ फोटोग्राफ, सो इट्स बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। सो एवरी बैंक हैज अ बिल्डिंग। ओके, एवरी इंश्योरेंस कंपनी हैज अ बिल्डिंग, एवरी कंपनी हैज अ हेडक्वार्टर्स। जियो का हेडक्वार्टर्स है, एयरटेल का हेडक्वार्टर्स है, वोडाफोन का हेडक्वार्टर्स है, ओके, रिलायंस का हेडक्वार्टर्स है, इन्फोसिस का हेडक्वार्टर्स है। हेडक्वार्टर्स मतलब देयर इज अ बिल्डिंग ना। एवरी बिजनेस जो आपने सुना है, एवरी बिजनेसमैन आपने जो सुना है, सबके पास बिजनेस एक डेफिनेटली बिल्डिंग तो होगा, एक नहीं काफी बिल्डिंग रहेगी। ओके, सो अ बिल्डिंग इज अ फिक्स्ड एसेट। सदियों तक अच्छा कंस्ट्रक्शन करोगे तो वो बिल्डिंग, ऐसा नहीं कि भाई थोड़ा पानी आ गया, जैसे हमारे बॉम्बे में एवरी मॉनसून में पानी भर जाता है और बिल्डिंग नीचे आ जाते हैं, नहीं, गुड कंस्ट्रक्शन टिक जाएगा। ओके, बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला है, फिक्स्ड एसेट। देन मशीनरी, ऑल ऑफ दीज मॉडर्न कंपनीज, इनका जो काम होता है ना, वो बड़े बड़े रोबोट्स करते हैं। ओके, सो आई रिपीट, दीज ऑल मशीन्स। तो मशीन्स एक बार फिक्स करते, दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी बिहाइंड दीज मशीन्स। ओके, रोबोटिक टेक्नोलॉजी, फाइन, एंड दे फिक्स इट वंस एंड फॉर मल्टीपल ईयर्स दीज मशीन्स कैन बी यूज्ड। तो जो मशीन्स होते हैं, ओके, वो क्या होता है? वो भी होता है एक फिक्स्ड एसेट। ओके, एनी मोर एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स? व्हाई नॉट? ओके, इफ यू हैव, गांव में प्रॉपर्टी, बिजनेस का भी कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी रहेगा। प्रॉपर्टी क्या है? जमीन, ग्राउंड, ओके, लैंड। तो लैंड किधर जाता है? लोग मर जाते, लोग उसी के अंदर गाड़े जाते, लैंड किधर जाता नहीं है। तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड एसेट। देन many companies nowadays have got delivery vehicles. Okay, so Amazon का delivery vehicle है, Flipkart का delivery vehicle है, so there are many Swiggy का होगा, Zomato का होगा, McDonald's का होगा, KFC का होगा। Okay, आजकल तो मतलब the world is so ahead that just a few days back, I'm guessing 4 या 5 दिन पहले, in India जहाँ तक ड्रोन का यूज है, सो ऑल दैट यू सी बिहाइंड मी, ओके, दीज 3 आर ड्रोन्स। सो द डिलीवरी ऑफ अ पार्सल वाया अ ड्रोन, ओके, नॉट ह्यूज पार्सल बट एक रीजनेबल साइज का, देर इज नो नीड फॉर अ पर्सन टू एक्चुअली ऑन अ व्हीकल ड्राइव कम टू योर प्लेस। ओके, तो ड्रोन डिलीवरी, दिस ऑल्सो इज अ थिंग, सच्चाई है, वो भी थोड़ा इजी इंडिया में हो चुका है। तो इट्स ऑल्सो अ डिलीवरी थिंग। सो
ये जो गाड़ी होगा या ड्रोन होगा, ये जो भी कंपनी है उनके लिए क्या बन जाते हैं, फिक्स्ड एसेट, बिकॉज दे कैन यूज इट फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इनके लिए ये जो उन्होंने कॉन्ट्रा जो व्हीकल बनाया है, ओके, जिसमें आगे भी साइकिल है और पीछे में उन्होंने थोड़ा सा इनोवेशन किया है, सो फॉर दिस पर्सन हु अर्न्स, कमाता है डिलीवरी करके इस गाड़ी के वजह से, उनके लिए ये साइकिल, ओके, क्या बन जाता है, एक फिक्स्ड एसेट बन जाता है। एंड फॉर एनीबडी जिसके पास एक होटल है, उसके अंदर जो फर्नीचर है वो बन जाता है फिक्स्ड एसेट। अगर आपकी डिलीवरी होती है, आपने, आई एम नॉट वेरी श्योर, मैंने काफ़ी बार देखा है कि दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक, okay, it's not a very pretty looking vehicle, the yellow color one, but it's electric, तो at least पेट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, पेट्रोल is extremely costly nowadays, so it's a delivery vehicle and all of these जो पीछे हमारे डोमिनोज का लगा है डिलीवरी, ये सब क्या है, these all examples of fixed asset, very very important। okay, fixed asset मतलब वो एसेट जो मेरा है, ओके, एसेट मतलब मेरा है बट फॉर अ लॉन्ग टाइम, 1 साल से ज्यादा, 5, 6, 10, 15, 20 साल तक, ओके। दूसरा टाइप का एसेट क्या है, करंट एसेट। ये करंट एसेट क्या है, अरे सिंपल, जो फिक्स्ड एसेट था वो 1 साल से ज्यादा, तो करंट एसेट 1 साल से कम, ओके, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल से कम। इसके अंदर क्या एग्जाम्पल आते हैं, डेटर। डेटर कौन है, कस्टमर। डेटर मतलब कस्टमर, ओके। कस्टमर दुकानदार को बहुत प्यारा होता है, ओके, मतलब शॉप्स, बिजनेसेस फाइट फॉर व्हाट, फॉर कस्टमर्स। ऑल दीज मोबाइल कंपनीज, वीवो, ओप्पो, जायोमी, ओके, इन लोग किसके लिए मार्केट में फाइट कर रहे, कस्टमर के लिए, कि भाई नहीं ये मेरा कस्टमर है, नहीं ये मेरा कस्टमर है। तो कस्टमर मेरा है, बट वो कस्टमर से जो पैसा आना है दैट इज नॉट द सेम, वो चेंज होते रहता है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, क्योंकि कस्टमर अलग अलग प्रोडक्ट खरीदते रहता है, ओके। तो आई रिपीट माई सेल्फ, एक भाजी वाला अगर किसी को, वेन एवर आई गो टू बाई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम वन पर्टिकुलर शॉप, उनको हमेशा सुबह सुबह को कॉल आता है, ओके। तो कोई तो है कहाँ पे रहते हैं, कोई अपार्टमेंट में, वहाँ से वो उनको कॉल करते, हम आज सांभर बना रहे हैं, हमारे घर पे ये डिलीवरी करो। कल 2 दिन बाद बोले कि हम दूसरा कुछ बना रहे हैं, हम हमारे घर पे ये डिलीवरी करो। तो उस दुकानदार के लिए ये जो कॉल कर रहे हैं ना, कस्टमर है ना, ओके, बट जो पैसा लेना है वो चेंज होते रहता है, ओके। वो सेम नहीं है, क्या इनसे मेरे को लेना है 40 रुपया 4 साल तक, नहीं, ऐसा नहीं है यार, हर एक दिन में, हर 2 दिन में वो चेंज होते रहता है। सो वो डेटर इज व्हाट, अ करंट एसेट। करंट एसेट मतलब क्या है, पैसा लेना है, मेरा है, बट वो सेम वैल्यू नहीं है, वो वैल्यू चेंज होते रहता है अगेन एंड अगेन। देन वेरी सिंपल, आपकी जेब में क्या है, सबके जेब में कुछ ना कुछ पर्स तो होगा, उसके अंदर कैश रहेगा। विल द कैश विल बी द सेम फॉर एवर, नो, इन अ डे इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बिकॉज इट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट्स करंट, ओके। करंट फ्लो कहते हैं ना, बदलते रहता है। सो फिक्स्ड एसेट मतलब फिक्स्ड। सर मेरे घर में एक रेफ्रिजरेटर है, हाँ तो फिक्स्ड है ना, वो थोड़ी रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, कबर्ड चेंज होते रहता है पोजीशन एवरी डे, नो, फिक्स्ड एक जगह पे, हाँ, बट बटवे में पैसा चेंज होते रहता है। गोदाउन में माल, स्टॉक कहते हैं इसको, गोदाउन में माल स्टॉक कहते हैं, ये भी बदलते रहता है, ओके, क्योंकि नया माल आता है, पुराना माल जाता है, नया माल आता है, पुराना माल जाता है। Right now in your mind, what do you teach your mind, कि in fixed asset वो एसेट आते हैं that is with the shopkeeper for many many years, and current asset में वो एसेट आते हैं which is with the shopkeeper for less than 1 year, 1 साल से कम, उसको कहते हैं current asset, okay। Third variety, very rarely asked but still I'll show it to you, फिक्टिशियस एसेट। ये फिक्टिशियस का मतलब क्या है, ये आता है वर्ड फिक्शन से। अच्छा, अब उसका मतलब क्या है सर, देखो अगर आप कोई नॉवल लो, मैनी मैनी नॉवेल्स आर ख्याली पुलाव, मतलब दे आर नॉट बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स, सच्ची घटनाएं किसके जीवन पे बेस्ड, नहीं नहीं नहीं, वो ऑथर ने सोचा है अपने दिमाग में, एक ऐसी दुनिया बनाई है अपने दिमाग में। हैरी पॉटर,
अपने दिमाग में एक दुनिया बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्शन, सच नहीं है, एक तरीके से झूठ है, एक तरीके से झूठ है। तो वैसे ही एक एसेट जो झूठा है उसको कहते हैं फिक्टिशियस। यू में से ये सर फोटो क्या लगाया तुमने, देखो भाई, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉय, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज बिटवीन देम, हवा, हवा, हवा दिखता नहीं है, तो उसी तरह फिक्टिशियस एसेट दिखता नहीं है। हाँ, व्हाट इज अ फिक्टिशियस एसेट, थोड़े टाइम पहले आपको समझाया था ना, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, 3 टाइप के एक्सपेंसेस, कैपिटल रेवेन्यू, डिफर्ड रेवेन्यू। तो दुकानदार, बिग बिग कंपनीज, ओके, जब ऐसा खर्चा करते हैं और वो खर्चा करने के बाद उनको कोई फायदा ही नहीं मिलता, वो पूरा खर्चा पैसा डूब जाता है, ओके, तो ये कंपनीज ऐसे खर्चे को क्या करते हैं, दे से, वो कहते हैं कि ये है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इन अदर वर्ड्स दे से इट इज फिक्टिशियस एसेट। आई रिपीट, व्हाई डू दे कॉल इट एसेट, एसेट का तो फायदा होना चाहिए ना, हाँ, बट क्योंकि ये झूठा एसेट है, ओके, ये जब लिखते हैं, व्हेन दे राइट इट, दे राइट इट इन द कैटेगरी कॉल्ड एज फिक्टिशियस एसेट। एसेट है बट हवे में, हवे में, इसका कोई फायदा होता नहीं है। हाँ, इट इज नॉट वेरी क्लियर जो मैंने आपको बोला, बट राइट नाउ एट दिस पर्टिकुलर लेवल आपको बिसाइड हवे में एसेट, ओके, मतलब कोई एसेट, ये एसेट का कोई हेल्प होता नहीं, आपको इससे ज़्यादा मतलब समझना नहीं है। वेरी सिंपली, बिकॉज व्हेन यू रीच अ पर्टिकुलर चैप्टर एंड अ पर्टिकुलर लेवल इन अकाउंटेंसी, देन दिस विल बी रिपीटेड फॉर यू, मोस्ट डेफिनेटली सो, क्योंकि तब तक आपका अकाउंटेंसी का ज्ञान का स्तर, द लेवल will go up and you will understand this in a much better manner. 3 type of asset, एक, ओके, फिक्स्ड एसेट, 2, फिक्स्ड एसेट का फायदा सालों साल, करंट एसेट का फायदा 1 साल से कम, और तीसरा तो एसेट ही नहीं है, वो हवा का एसेट है, फिक्टिशियस एसेट, झूठा एसेट। many times companies they put a lot of money in research and development, lot of money, बहुत पैसा डालते हैं, और जब वो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रोडक्ट पिट जाता है मार्केट में, चलता ही नहीं, कस्टमर बोलता है हमको नहीं पसंद है, हमको नहीं चाहिए, तो कंपनी बोलती है अरे क्या करेंगे हम लोग, हमने तो 10 करोड़ रुपया डाल दिया इसके अंदर, हमने तो 50 करोड़ रुपया इसके अंदर डाल दिया, क्या करेंगे, खाना का पे तो तुमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, वो किधर रिकॉर्ड करने का, ये वाला झूठा एसेट, फिक्टिशियस एसेट। ओके, सो अगेन more details when you grow a bit more. Very simply put, you see, when you're a small child, छोटा बच्चा which is of 4 years old, 5 years old has a lot of questions, but उसको उतनी डिटेल में समझाया नहीं जा सकता about life, about worries of life. नहीं, छोटा बच्चा है, don't worry, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तभी वो केपेबल होगा उसको अंडरस्टैंड करने में, तब समझा देंगे उसको। ओके, अभी बच्चा है, थोड़ा मज़ा करने दो उसको। 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स, ये हमारा आज का आधा मुद्दा खत्म हो गया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट मुद्दे पे, विच इज़ लाइबिलिटीज। नाउ फ्यू मिनट्स बैक मैंने ये बताने की कोशिश आपको की थी कि लाइबिलिटीज के लिए आपको क्या हिंदी का वर्ड यूज़ करना है। तो पहले तो मैं वो आपको बता देता हूँ कौन से हिंदी का वर्ड आपको यूज़ करना है। तो देखो भाई, ऐसा था, यू हैड टू यूज़ द वर्ड, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड आपका। आपका मतलब क्या? मेरा नहीं है, आपका है। ओके, रखो, आपका है, कीप इट। हाँ, पराया। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर जब आप लाइबिलिटीज की बात करो। सो इन अ शॉप मैक्सिमम चीज़ें दुकानदार की है, बट एग्जाम्पल होटल का सिचुएशन सोचो, एंड एसी लगा है तो अच्छा कूलिंग हो रहा है, कोई परेशानी नहीं। ऑल ऑफ अ सडनली एसी का सिस्टम बंद पड़ गया, गर्मी होने लगी, तो दुकानदार क्या करेगा? इमीडिएटली तो एसी रिपेयर नहीं हो सकता है, तो ही विल ट्राई टू अरेंज फ्रॉम हिज फ्रेंड्स अदर शॉप्स, पंखा लेके आएगा और लगाएगा हर एक टेबल के आसपास में, ताकि कस्टमर इतना कंप्लेन ना करे।
नाउ जस्ट बिकॉज दोज फैंस आर इन हिज शॉप, कैन द शॉपकीपर से मेरा पंखा है? नहीं, तूने टेम्पररी लिया है, पराया है, लौटाना है, आपका, दोस्त का. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ लाइबिलिटीज कि बाबा दुकानदार का नहीं है, पराया है, कभी ना कभी देना है. हाँ, फिक्स लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है? अगर हमको कुछ पेमेंट करना है, दुकानदार को कुछ पेमेंट करना है, बट उसके लिए टाइम है. टाइम है का मतलब है 2 साल, 5 साल, 10 साल. अच्छा, तो मतलब थोड़ा आराम से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं. मतलब देखना, लोन लेते हैं ना, ओके, ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट करोड़ों का लोन लेते हैं, तो ऐसा थोड़ी 10 दिन के बाद वापस देते हैं बैंक को. वो तो 10 साल के बाद देते हैं, 20 साल के बाद देते हैं. मतलब कभी कभी फ्रॉड होता है, फ्रॉड पता होते होते 10 साल निकल जाते हैं. हाँ, सो व्हेन यू हैव टू पे, ओके, बट द पेमेंट कैन बी डन आफ्टर मल्टीपल ईयर्स, दैट इज कॉल्ड एज अ फिक्स्ड लाइबिलिटी. लाइबिलिटी मीन्स पराया, आपका, मुझे आपको पे करना है, बट अगर मैं ये पेमेंट आराम से कर सकूं तो फिक्स्ड, लॉन्ग टाइम. अच्छा, बट अगर मुझको पेमेंट जल्दी जल्दी करना है तो क्या? तो फिर करंट लाइबिलिटी. अच्छा, करंट लाइबिलिटी का कुछ एग्जाम्पल, नो प्रॉब्लम. क्रेडिटर. ओके सर, ये पहले वर्ड सुना मैंने, क्रेडिटर का मतलब क्या? ओके, देखो, आपके घर पे कोई ना कोई दूध का डिलीवरी करता है, बराबर. मे बी कोई आजकल ग्रोफर्स, काफ़ी ऐप है, बिग बास्केट, ये लोग घर पे भाजी, ओके, फ्रूट्स का डिलीवरी करते हैं. कैन यू टेल द दूध वाला अंकल पेमेंट 2 साल बाद करूँ तो चलेगा? चलेगा. वो देखो ना, बैंक को हम आराम से पेमेंट कर रहा है, वो बैंक वाला बोला 20 साल बाद, तो दूध वाला बोलेगा काय को यार, हमारे पेट पे लात मारता है, हमको पेमेंट तुम महीने के एंड में करो, पर 2 साल बाद नहीं है. ओके, क्योंकि उसमें भगवान जाने दूध का प्राइस में कितना फर्क आ जाएगा. सो आई रिपीट, यू हैव टू पे फास्ट, करंट पेमेंट. तो दूध वाले अंकल को करंट पेमेंट, जो भाजी वाजी घर पे लेके आते हैं उन लोगों को करंट पेमेंट. कैन यू टेल टाटा जी, कैन यू टेल अडानी जी, थोड़ा नंतर ना, 2 महीना 4 महीना, अरे 2 महीना 4 महीना वो लोग तुमसे बात भी नहीं करेगा, 1 महीने का पेमेंट नहीं करेगा, तुम्हारा लाइन आके काट देगा. विदाउट इलेक्ट्रिसिटी क्या करोगे? स्टीवन सर का लेक्चर कैसे अटेंड करोगे? मतलब अलॉट वो थिंग्स यू कांट डू. यू हैव टू पे दीज बिल्स, यू हैव टू पे देम फट फट फट. दे आर कॉल्ड एज current liabilities. So I repeat, fixed asset, current asset. Similarly उसका उल्टा, fixed liability and current liability. तो liabilities में ये दो ही है, fictitious liability नहीं होता. तो प्लीज नोट, वो उधर जाना नहीं हम लोगों को. 2 वर्ड्स आपको याद रखने हैं ताकि वो थोड़ा सिंपल हो जाता है. तेरा मेरा, मेरा मतलब एसेट, तेरा, वेल तेरा थोड़ा मवाली टाइप का लैंग्वेज लगता है, आपका, ओके, थोड़ा शरीफ लगता है, दैट बिकम्स लाइबिलिटीज. उतना सिंपल याद रखना, सो दैट एटलीस्ट ये जो लेक्चर आज हमने किया है इसका आपको समरी याद रहे. ओके, बिफोर वी गो अहेड, एक लास्ट का पॉइंट आज के लिए, देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए. ओके, वो फॉर्मूला क्या है? वो है नेटवर्थ, ओनर्स इक्विटी एंड कैपिटल. वेरी सिंपल. सर ये नेटवर्थ, अभी ये वर्ड क्या है, ये ओनर्स इक्विटी का वर्ड क्या है, कैपिटल पता है, मालिक का पैसा. हाँ, नेटवर्थ इज द सेम बट इन अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टाइलिश लैंग्वेज, बराबर. बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास जाओगे ना, ओके, सर्दी जुकाम को भी वो बड़े स्टाइलिश लैंग्वेज में वर्डिंग्स देंगे. सो डिपेंड्स. ओके, सो कैपिटल मतलब मालिक का पैसा, उसी तरह नेटवर्थ इज मालिक का पैसा, कैपिटल या ओनर्स इक्विटी इज ऑल्सो मालिक का पैसा. अच्छा, हाउ डू यू फाइंड दिस मालिक का पैसा? क्या प्लस करने का, क्या माइनस करने का, क्या मैथ्स करने का? वेल, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग बिफोर वी एंड द लेक्चर फॉर टुडे. सिंपल, एसेट माइनस लाइबिलिटीज. आई रिपीट, एसेट माइनस लाइबिलिटीज. एसेट इसके पहले बताया मेरा, लाइबिलिटी इसके पहले बताया तेरा. इसके लिए वो सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है. ओके, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट. हाँ, तो you add assets and you minus the liabilities. What will you get? Capital, मालिक का contribution उसके बिजनेस में. Again, थोड़े स्टाइलिश लैंग्वेज में करें क्योंकि दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ योर टेक्स्ट बुक, तो वो लैंग्वेज मुझे बताना पड़ेगा.
सो ओनर्स इक्विटी, मालिक का पैसा, इज इक्वल्स टू टोटल इक्विटी माइनस क्रेडिटर्स इक्विटी। क्रेडिटर्स इक्विटी मतलब पराया पैसा, कि अपना पैसा माइनस पराया निकाल दो, ऑटोमेटिकली मालिक का जो कंट्रीब्यूशन है वो बच जाएगा। नाउ दिस फॉर्मूला कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटीज, ये कैसे काम आएगा? वेल, यू हैव प्रीवियसली डन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बराबर। मैथ्स में इक्वेशंस काफ़ी बार किया है, तो वही कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर एंड लेटर ऑन इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैं पढ़ाऊंगा। इसके लिए आज मैं ये इंट्रोड्यूस करके दे देता हूँ, डोंट वरी, और आधा घंटा नहीं लूँगा, मे बी 5 more minutes एंड विल बी डन विद टुडे। ओके, लिटिल बाय लिटिल द लेंथ ऑफ द लेक्चर विल इंक्रीज फॉर द सिंपल रीजन इज नाउ जो लड्डू पेड़ा का टाइम है वो खत्म हो जाएगा। अभी थोड़ा मतलब सीरियस स्टफ हमको हजम करना है। नाउ अगर आपको क्वेश्चन में दिया केस 1, मतलब आई विल केस 1, केस 2, केस 3, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, कैपिटल नहीं दिया, व्हाट इज कैपिटल? मालिक का कंट्रीब्यूशन, एसेट 10 लाख, लाइबिलिटीज 1 लाख। क्वेश्चन, कैपिटल ढूंढ के बताओ। अरे सिंपल फॉर्मूला है, कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट माइनस लाइबिलिटी, 10 लाख माइनस 1 लाख, हाउ मच? 9 लाख, डन। हाँ, तो दैट्स इट, इतना सिंपल है एक्चुअली। सो यू शुड नो हाउ डू यू फाइंड। ओके, कोई भी मालिक को, दुकान के मालिक को, इफ somebody has a flourishing business, you see your friend जिसने एक बिजनेस स्टार्ट किया, नया बिजनेस, और बहुत अच्छा कर रहा है, you are inquisitive, you want to know, you'll go and ask him, तूने कितना इन्वेस्ट किया है ये बिजनेस के अंदर? तो वो कुछ ना कुछ तो फिगर आपको देगा ना, वो कैसे ढूंढता है? ये करके, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। ओके, केस 2, कैपिटल 15 लाख, एसेट 22 लाख, लाइबिलिटी नहीं पता। Okay, so how do you now find the missing number of liability? See, formula तो वही है, capital is equals to asset minus liability. तो I am just substituting it. फिर क्या करूँगा? liability को एक तरफ रखता हूँ, 15 lakhs को ये तरफ लाता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा? माइनस। तो liabilities will become 22 lakhs minus 15 lakhs. I am not teaching maths, तो मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ लेफ्ट का राइट, ऑब्वियसली ना, इधर प्लस तो उधर माइनस, उधर मल्टीप्लाई तो इधर डिवाइड। यू गेट द मिसिंग नंबर ऑफ एसेट विच इज 7 lakhs। ओके, फॉर्मूला एक है, समटाइम्स इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग कैपिटल, समटाइम फॉर लाइबिलिटीज, एंड इफ यू नाउ सी इन केस 3 इट इज यूजफुल फॉर एसेट्स। कैपिटल इज 15 लाख, एसेट नहीं पता हमको, और लाइबिलिटीज 3 लाख। कैन आई फाइंड माई मिसिंग एसेट्स? व्हाई नॉट, वो ऊपर का जो फॉर्मूला है वही काम आ जाएगा। सो कैपिटल इज एसेट्स विच इज नॉट नोन माइनस 3 लाख। अभी लेफ्ट राइट आप यही करो, पार्टी घुमाओ। ओके, सो एसेट को एक तरफ रखूंगा और दूसरे तरफ पे आई विल गेट 15 लाख प्लस 3 लाख, बिकॉज ना 3 लाख इधर से उधर चला गया ना, इसके लिए प्लस। सो एसेट है कितना? 18 lakhs. For this you had to know कैपिटल क्या है, एसेट क्या है, उसके वेराइटीज क्या है, लाइबिलिटी क्या है, उसके वेराइटीज क्या है, एंड दैट इज द रीजन आज मैंने झलक दिखला जा, थोड़ा आइडिया आपको दिया। इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इन अपकमिंग लेक्चर्स हमको करने हैं, बट दैट टाइम इट शुड नॉट बी अनकंफर्टेबल फॉर यू। मैंने आज ये बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इंट्रोड्यूस करा दिया। ओके, fully understand, lecture today has been, you don't have to copy this, don't worry, because all of this later on PDF format में on the Telegram platform definitely is going to be available. हाँ, before I very quickly change my scene behind and remind you, क्या lecture अगर explanation पसंद आ गया तो like ज़रूर कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर बेल आइकन नहीं दबा दिया तो घंटा को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे कि भाई आपका लेक्चर कब यहाँ पे रिलीज होने वाला है। नाउडेज वी इवन हैव द फैसिलिटी ऑफ द कम्युनिटी टैब। ओके, तो कम्युनिटी टैब में भी वी विल डू आवर बेस्ट टू कीप यू अपडेटेड सो दैट यू गेट ऑन योर यूट्यूब फ्रंट पेज द मैसेज दैट वी पोस्ट कंसर्निंग द लेक्चर्स। ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं। इट्स बीन अ लॉन्ग लेक्चर बट आई होप जो पार्ट आपको नहीं समझा
you can always put it in the comment box, no problems. If you have any request, if you have any suggestions, आप comment box का उपयोग कर सकते हो, कोई doubt, कोई problem उसके बारे में नहीं है. जल्दी मिलेंगे with the continuation of this lecture with all of these terminologies, and we will take the terminology का गाड़ी ahead also. Okay, till that time please take care of yourself. अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए. Good day to all of you. God bless. Bye for now.